السلام علیکم ناظرین، آج ہم بارث علوم اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے، ان کی ولادت شریف کے بارے میں جانیں گے، ان کی پوری زندگیات کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کی ولادت شریف تاج الشریعہ فقیہ اسلام جانشین حضور مفتی اعظم علامہ مفتی الحاج الشاہ محمد اختر رضا خان ازہری قادری بن مفسر اعظم ہند مولانا محمد ابراہیم رضا زیلانی بن حجت الاسلام مولانا محمد حامد رضا بن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی 25 فروری 1942 عیسوی محلہ سوداگران بریلی شریف میں پیدائش ہوئی تھی۔ مختصر خاندانی حالات: تاج الشریعہ کا خاندان افغانستان سے تھے اور قبیلہ بڑھیج سے تعلق رکھتے تھے۔ مورث اعلیٰ حضرت شہزادے سعید اللہ خان قندھار حکومت افغانستان کے ولی عہد تھے۔ خاندانی اختلاف کی وجہ سے قندھار کو ترک وطن چھوڑ کر لاہور آئے۔ یہاں پر گورنر نے اپنے شیش محل میں آپ کے قیام کا انتظام کیا اور دربار محمد شاہ بادشاہ دلی کو ستہ بھجوائی۔ دربار سے شاہی مہمان نوازی کا حکم ہوا۔ پھر شہزادے سعید اللہ خان نے دلی بادشاہ محمد شاہ سے جا کر ملاقات کی۔ آپ کو بادشاہ نے فوج کا جنرل بنا دیا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی فوج میں اچھی جگہ مل گئی۔ روہیل کھنڈ میں کچھ بغاوت کے آثار منایا ہوئے تو بادشاہ نے آپ کو روہیل کھنڈ دارالسلطنت بریلی بھیج دیا تاکہ وہاں امن بامان قائم کر سکیں۔ آپ کے صاحبزادے اختر یار خان دربار دلی میں وزیر موقت تھے۔ کلید قلمدان ملا تھا۔ ان کی اپنی اولاد مہر تھی۔ حافظ کاظم علی خان کے عہد میں مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ ہر طرح بغاوتوں کا شور اور آزادی و خود مختاری کا ظہور ہے۔ آپ اوڑ کی کمان سنبھالنے پہنچے۔ آپ کے فرزند مولانا شاہ رضا علی خان بریلوی، جنہوں نے 1857 عیسوی میں اہم کردار ادا کیا، انگریز نے ان کا سر قلم کرنے کے پشچات 5000 کے انعام کا اعلان کیا۔ آپ کے دو فرزند ہوئے مولانا مفتی نقی علی خان بریلوی اور دوسرے مولانا حکیم نقی علی خان بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے درجنوں کتابیں لکھی۔ مولانا نقی علی خان کے 3 فرزند تھے: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی، مولانا مفتی محمد رضا خان بریلوی۔ بسم اللہ خانی جانشین حضور مفتی اعظم کی عمر شریف جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو والد ماجد مفسر اعظم ہند مولانا ابراہیم رضا زیلانی میاں بریلوی نے تقریباً بسم اللہ خانی منعقد کی اور اس میں دارالعلوم منزل اسلام کے جملہ طلبہ کو دعوت دی۔ حضور مفتی اعظم آل رحمان عبد البرکات محی الدین مصطفیٰ رضا خان نوری بریلوی رضی اللہ عنہ نے رسم بسم اللہ ادا کرائی اور محمد نام پہ عقیدہ ہوا۔ پکارنے کا نام محمد اسماعیل رضا اور عرف محمد اختر رضا توضیح فرمایا۔ حضور مفتی اعظم کی صاحبزادی یعنی جانشین حضور مفتی اعظم کی والدہ ماجدہ نے تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا، چونکہ نانا جان کا صحیح جانشین اسی نواسے کو آنے والے وقت میں بننا تھا اور ساری توجہ انہی سے وابستہ تھی۔ اسی لیے نانا جان حضور مفتی اعظم کی دعائیں بھی آپ کے حق میں نکلتی رہی۔ القابات و خلافت: جانشین حضور مفتی اعظم نے ویسے تو حضور مفتی اعظم کی حیات حاضری ظاہری میں تبلیغی سفر آغاز کر دیا تھا، مگر باضابطہ دور پر پہلا تبلیغی سفر 1984 عیسوی اور 1404 ہجری سور اجٹر گجرات کا دورہ فرمایا۔ بیراول پر پور بندر جام جودھ پور اپلٹا دوراجی اور جیت پور ہوتے ہوئے 15 اگست 1984 عیسوی 1404 ہجری کو امریلی تشریف لے گئے۔ وہاں ہزاروں لوگ داخلے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ ہوئے۔ رات 12
बजे से 2 बजे तक जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म की तकरीर हुई और 18 अगस्त को जूनागढ़ में बजमे रज़ा की जानिब से एक जलसा रजा मस्जिद में रखा गया, जिसमें अमीर शरीयत हाजी नूर मोहम्मद रज़वी फरमानी ने ताजुल इस्लाम का लक़ब दिया, जिसकी तायद मुफ्ती गुजरात मौलाना मुफ्ती अहमद मियाँ ने की। फ़कीह इस्लाम का लक़ब जानशीन मुफ्ती आज़म को दारुल मुफ्ती सनादुल मुहक्किकीन और फ़कीह इस्लाम का लक़ब 1984 ईस्वी 1404 हिजरी में रामपुर के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद साहिद अली रज़वी सैकुल हदीस अलजामियातुल इस्लामिया गंज कदीम रामपुर खलीफा व तिलमीज़ हुजूर मुफ्ती आज़म मौलाना साहब मुस्तफ़ा रज़ा बरेलवी ने दिया। मुफ़क्किरे अहले सुन्नत का लक़ब मुफ़क्किरे अहले सुन्नत फ़कीह आज़म और शेखुल मुहिद्दीन का लक़ब 14 शब्बाल मुकर्रम 1405 हिजरी 1985 ईस्वी को मौलाना हकीम मुजफ्फर अहमद रज़वी बदायूनी खलीफा ताजुल उलमा सैयद औलाद रसूल मोहम्मद मियाँ मरहेरबी ने दिया। उसके अलावा मसल ताजो सरिया मराजुल उलमा व फुलजा वगैरह फजीलतुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना शेख मोहम्मद बिन अलवी मालकी शेखुल हरम मक्का मुअज्जमा कुतुब मदीना हजरत अल्लामा व मौलाना शाह जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा व शागिर्द आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी जैद अकाबिर उलमा व मसाइक ने अलकावात से नवाजा, जिसकी एक तफील फहरिस्त है। सरकही काउंसिल ऑफ इंडिया में मुल्क भर से आए जैद उलमाए किराम व मुफ्ती आज़म ने नवंबर 2005 ईस्वी में काजियुल कुज्जात फिल हिंद का लक़ब दिया। उसूल उलूम इस्लामिया जानशीन मुफ्ती आज़म ने घर पर वालिदह मस्जिदह से कुरान करीम ख़त्म किया। इसी दौरान वालिद मस्जिद मौलाना इब्राहिम रज़ा खां जिलानी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से उर्दू की किताबें पढ़ी। घर पर तालीम हासिल करने के बाद वालिद बुज़ुर्गवार ने दारुल उलूम मंजरे इस्लाम में दाखिल कराया। नूही मीर मीज़ान व मुनस्साब वगैरह से हिदाया आखिरैन तक की किताबें दारुल उलूम मंजरे इस्लाम के कहने मश्क असातिज़ा किराम से पढ़ी। ताजो सरिया ने फ़ारसी की इब्तिदाई कुतुब पहली फ़ारसी दूसरी फ़ारसी गुलजारे गुलिस्ता और बोस्ता मंजरे इस्लाम के उस्ताद हाफिज इन्नामुल्लाह खान तस्नीम हमीदी बरेलवी से पढ़ी। 1992 ईस्वी में FR इस्लामिया इंटर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां पर हिंदी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। जामिया अज़हर में दाखिला मुफस्सिर आज़म अलैहिर्रहमान के मुरीद खास जनाब निसार अहमद हामिदी सुल्तानपुरी मरहूम की कोशिशों से जामिया ज़हर काहिरा मिस्र से अरबी अदब में महारत हासिल करने के लिए फजीलतुल शेख मौलाना अब्दुल तब्बाब मिस्री की खिदमत हासिल की गई। शेख साहब दारुल उलूम मंजरे इस्लाम में दर्स तदरीस दिया करते थे। उनके खास शागिर्द में आपका सोहमर होता था। आपका दौरान तालिबे इल्मी मामूल था कि सुबह सुबह अरबी अखरावत उस्ताद को सुताने और उर्दू हिंदी के अखबारात की खबरें व इल्तियालात को अरबी ज़बान में तर्जुमा करके सुनाते। आपके शेख साहब बड़ी तवज्जो से पढ़ाते। आपकी जहानत व फतानत देखते हुए जामिया अज़हर में दाखिले का मशवरा मौलाना इब्राहिम रज़ा खां जिलानी मियाँ को दिया तो वो तैयार हो गए। ताजो सरिया जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद 1963 ईस्वी में जामिया अज़हर काहिरा मिस्र तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने कुलिया उसूलुद्दीन एमए में दाखिला लिया। मुसलसल 3 साल तक जामिया अज़हर में मिस्र में रहकर जामिया के फ़न्ने तफसीर व हदीस के माहिर उस्तादों से इल्म हासिल किया। जामिया अज़हर से अफरागत
ताज सरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां अजहरी रहमतुल्लाह अलैह 1963 ईस्वी में जामिया अजहर मिस्र तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर 3 साल मुसलसल उसूल इल्म में मशगूल रहे। दूसरे साल के सालाना इम्तिहान में आपने शिरकत की। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजले अमीम से पूरे जामिया अजहर मिस्र में इम्तिहान में आला कामयाबी अता फरमाई। अवार्ड से नवाजे गए ताजो सरिया रहमतुल्लाह अलैह की 1966 ईस्वी में जामिया अजहर मिस्र से फरागत हुई तो आप अब्बाल पोजीशन हासिल करने की वजह से जामिया की मुक़्तदर शख्सियात ने आपको बतौर इनाम जामिया अजहर अवार्ड पेश किया गया और साथ ही साथ सनादे फरागत तहसील उलूम इस्लामिया से भी नवाजे गए। आपके अस्ताजिदा इकराम मुफ्ती हुजूर मुफ्ती आज़म मौलाना अशाह मुस्तफ़ा रजा नूरी बरेलवी अलैह रहमा, बैरुल उलूम हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफजल हुसैन रज़वी मंगूरी, मुसफ़िर आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहीम रज़ा खां उर्फ ज़ीलानी मियाँ रज़वी बरेलवी, फ़जीलतुल शेख अल्लामा मौलाना मोहम्मद समाई सैकुल हदीस व तफसीर जामिया अजहर मिस्र, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार उस्ताद हदीस जामिया अजहर मिस्र, उस्ताजुल अस्ताजिया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद जहांगीर खां रज़वी आजमी, फ़जीलतुल शेख मौलाना अब्दुल तब्बाब मिस्री उस्ताद मंजर इस्लाम बरेली शरीफ, मौलाना हाफिज़ इनामुल्लाह खां तस्नीम हामिदी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, दर्स व तदरीस ताजो सरिया रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां अजहरी को 1967 ईस्वी में दारुल उलूम मंजर इस्लाम में दर्स व तदरीस देने के लिए पेशकश की गई। आपने इस दावत को कबूलियत से सरफराज किया। 1967 से तदरीस के मकसद पर फाइज हो गए। ताजो सरिया के बड़े भाई मौलाना रेहान रजा उर्फ रहमानी मियाँ बरेलवी ने 1978 ईस्वी में दारुल मुदरिसीन आला अहदे पर मुकर्रर किया और इस अहदे के साथ रज़वी दारुल इफ्तिदा के नाइब मुफ्ती भी रहे। आपने अपने अहद में तालीमी निज़ाम की बेहतरीन अस्तिजिया और तलबा से हुस्न सलूक दर्स व तदरीस में मेहनत सक्का आला जहन फ़िक्र के साथ करते आ रहे और मदरसे को बामे उरूज तक पहुँचाया। दरअसल तदरीस का सिलसिला मुसलसल 12 साल तक चलता रहा। फतवा नवेसी का आगाज़ जानसीन हुजूर मुफ्ती आज़म अल्लामा मुफ्ती अलहाज अशाह मुस्तफ़ा मोहम्मद अख्तर रज़ा खां अजहरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने वदियत के तौर पर इल्मी व फ़िक़ही सलाहियतों और जुज़्वात पर कामिल दस्तरत इल्म कुरान व हदीस पर मुकम्मल इदराक अता फरमाया। आपने सबसे पहला फतवा 1966 ईस्वी 1386 हिजरी में तहरीर फरमाया। मुफ्ती सैयद फजल हुसैन मुंगरी सदर दारुल इफ्तार मंजर इस्लाम को दिखाया। आपने फरमाया कि अब मैंने देख लिया है, नाना मोहतरम को देखा, आइए फिर। आपने अपने नाना ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया। हजरत मुलाहिजा फरमाकर आपसे मुखातिब होकर दाद तहसीन और हौसला अफजाई फरमाया और हिदायत की दारुल इफ्ता में आकर फतवा लिखा करो और मुझे दिखाया करो। इससे पहले फतवे में सवालात के शाफी व काफ़ी जवाबात दिए हैं। मरकजी दारुल इफ्ता का क़याम 1982 ईस्वी में ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान कादरी फाजले बरेलवी के दौलत कदे पर जहां ताजो सरिया की मुस्तकित सुकूनत और मरकज़ी दारुल इफ्ता की बुनियादी डाली। 1982 ईस्वी में घर पर ही मसाइल के जवाबात इनायत फरमाते थे। बाजवात तौर पर किसी इरादे की बुनियाद नहीं पड़ी थी।
मगर उलमा व मसाइक और अवाम अहले सुन्नत की ज़रूरत का ख्याल करते हुए मरकाजी दारुल इफ्ता के क़याम का फ़ैसला किया। उस वक्त हजरत रोज़ाना दारुल इफ्ता जलवा अफरोज होते हुए और आपने मौलाना मुफ्ती काजी अब्दुर्रहमान बस्तवी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाजिम अली कादरी बाराबंकी, मौलाना मुफ्ती हबीब रज़ा खान बरेलवी को मुफ्ती की हैसियत से मरकाजी दारुल इफ्ता में मुकर्रर फरमाया। फतवा को रजिस्टर में नकल की खिदमत के लिए मौलाना अब्दुल वाहिद खान बरेलवी को मामूल किया गया। मौलाना अब्दुल वाहिद बरेलवी ने 1983 ईस्वी से 2005 तक फतवा की नकल का काम किया। आज मरकाजी दारुल इफ्ता में मौलाना के हाथ से फतवा के 80 रजिस्टर होंगे। मौजूद वक्त में मरकाजी दारुल इफ्ता से जारी फतवा की हैसियत मुल्क व बैरून ममालिक में हरफ आखिर का दर्जे में है, जिस मसंदे इफ्ता की बुनियादी मुजाहिदी जंग आज़ादी मौलाना मुफ्ती रज़ा अली खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी, वो आज तक बरौनक है। अजदाबी ज़िंदगी। मुफस्सिर आज़म हिंद ने जानसीन मुफ्ती आज़म का अक़्द हुस्नुन हकीमुल इस्लाम मौलाना हसनैन रजा बरेलवी अलैहिर्रहमा इब्ने उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रजा खान बरेलवी डॉक्टर ने अख्तर सलाह सीरत के साथ कर दिया था, जिसकी तकरीब 3 नवंबर 1968 ईस्वी साहबुन मुअज्जम 1388 हिजरी बरोज इतवार को मोहल्ला काकर टोला पुराना शहर बरेली में अमली जंबा पहनाया गया, जिसने एक साहबजादे मखदूम गिरामी मौलाना असद रज़ा कादरी बरेलवी और 5 साहबजादियाँ तवल्लुक हुई, जिनमें सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। हज व ज़ियारत। ताजो सरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां अजहरी रहमतुल्लाह अलैह ने पहला हज 1403 हिजरी 4 सितंबर 1983 ईस्वी को और दूसरा हज 1405 हिजरी 1985 ईस्वी को, तीसरा हज 1406 हिजरी 1986 ईस्वी में अदा किए और कई बार उम्राह से फैज़याब हुए। तकवा सियारी। आजकल पीर फ़कीरी आलिमों और आलिमों के ईद गिर्द औरतों का हुजूम लगा रहता है। ये आम सी बात है, जहाँ देखिए मुंह खोले चलती फिरती नजर आएगी। हया नाम की कोई चीज़ नहीं मगर नजीस जन सीने हुजूर मुफ्ती आजम की तकवा सीरती मुलाहिजा फरमाइए। 1407 हिजरी की बात है कि जनाना खाना में औरतें ज़ियारत बेअत के लिए हाजिर हैं। जब आप जनान खाने में तशरीफ़ ले गए तो चंद औरतों के निकाब उल्टे और मुंह खोले हुए थे। आपने अपनी फौरन आंखें दूसरी तरफ फेर ली और फरमाया, पर्दे करो, बेहिजाब घूमना फिरना सख्त मना है। निकाब डाले और अपने लाहौल पड़ा। सब औरतों ने निकाब डाल लिया। फिर बेअत फरमाया, शरीयत की पासदारी हो तो ऐसी हो, सफ़र चाहे जैसा हो, हवाई जहाज से हो या ट्रेन या गाड़ी से, नमाज का वक्त होते ही बेचैन हो जाते। अक्सर हुक्म फरमाते कि मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ूंगा। चाहे एयरपोर्ट हो या स्टेशन, नमाज तो कज़ा नहीं होती। नमाज पढ़ने की सभी को ताकीद फरमाते। हजरत राकिम से अक्सर पूछते कि नमाज पढ़ी कि नहीं। अगर मालूम हो गया कि नमाज नहीं पढ़ी तो सख्त नाराज होते। मुझे खूब याद है कि 1991 ईस्वी से 2006 तक तकरीबन 15 साल तक मैंने हजरत के साथ पूरे मुल्क का सफ़र किया, मगर नमाज हजरत की कोई कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम और उनके खुलफा, आपकी लिखी हुई किताबें, हजरत मुजद्दिद से कबीर अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा आजमी दामत बरकतुल्लाह आलिया फरमाते हैं कि ताजो सरिया के कलम से निकले हुए फतवा के मुताला से ऐसा लगता है कि हम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रदी अल्लाह अन्हु की तहरीर पढ़ रहे हैं। आपकी तहरीर दलाइल और हवालाजात की भरमार से यही जाहिर होता है कि हुजूर ताजो सरिया रहमतुल्लाह अलैह कसीरत तबलीगी सफ़र और दीगर बेतहास मसरूफियात के बावजूद तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला भी जारी रख रहे हैं। हिजरत रसूल, आसरे क़यामत, टीबी और
वीडियो का ऑपरेशन और शरई हुक्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारुख या आज़र। सुनो चुप रहो। शरह हदीस नियत अल हकूकल मुबीन 3 तलाक का शरई हुक्म। क्या दीन की हुमूमी पूरी हो चुकी है? दिफा कजाकुल ईमान जसाने ईद मिलादुन नबी। बैत व खिलाफत। हुजूर ताजो सरिया रहमतुल्लाह अलैह को बैत व खिलाफत का शर्फ सरकार मुफ्ती आजम रदी अल्लाह अन्हु से हासिल है। सरकार मुफ्ती आजम रदी अल्लाह अन्हु ने बचपन में ही आपको बैत का शरफ अता फरमा दिया और सिर्फ 19 साल की उम्र में 5 जनवरी 1962 ईस्वी को 1381 हिजरी को तमाम सिलसिले की खिलाफत व इजाज़त से नवाजा। इसके अलावा आपको खलीफाए आला हजरत बुरहाने मिल्लत हजरत मुफ्ती बुरहान हक जबलपुरी सैयदुल उलमा हजरत सैयद शाह आले मुस्तफ़ा बरकाती महरबी हसनैल उलमा हजरत सैयद हैदर हसन मियाँ बरकाती वालिद माजिद मुशफ़िर आज़म अल्लामा मुफ्ती इब्राहीम रज़ा खान कादरी से भी तमाम सिलसिले की इजाज़त व खिलाफत हासिल की। तादाद मुरीदीन मुताकिदीन शैखुल इस्लाम व मुस्लिमीन फ़कीहे इस्लाम अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज्जमा, बांग्लादेश, मॉरिशस, श्रीलंका, बरतानिया, हाईलैंड, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका, इराक, ईरान, तुर्की, मलावी, अरब इमारात, कुवैत, तिब्नान, मिस्र, शाम, कनाडा वगैरह ममालिक में लाखों की तादाद में फैले हुए हैं। मुरीदीन में बड़े बड़े उल्मा, मशाइख, सुलहे, शुआरा, मुफरक्कीन, कायदीन, मुसफ़ीन, रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर, डॉक्टर और मुहस्सिकीन हैं जो आपकी गुलामी पर फ़ख्र महसूस करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आपके मुरीदीन 2 करोड़ हैं। अरबाब इल्म व दानिश की नज़र में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अख्तर रज़ा मियाँ घर में बैठने का वक्त नहीं। ये लोग जिनकी भीड़ लगी है कभी सुकून से बैठने नहीं देते। अब तुम इस काम को अंजाम दो, मैं तुम्हारे सुपर्द करता हूँ लोगों से। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, आप लोग अब अख्तर मियाँ से रुजू करें और उन्हीं को मेरा कायम मकाम और जानसीने जाने। हुजूर कुतुब मदीना अल्लामा मुफ्ती जियाउद्दीन रज़वी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मुझे मेरे मुर्शिद हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह अन्हु से जो कुछ मिला है उनके खानवादे के शहजादे मौलाना इब्राहीम रज़ा खान, मौलाना रेहान रज़ा खान और मौलाना अख्तर रज़ा खान को अता कर दिया। हुजूर सैयदुल्लाह उलमा मुफ्ती सैयद शाह आले मुस्तफ़ा बरकाती महरबी अलैहि रहमा हुजूर ताजो सरिया को तमाम सिलसिलों की इजाज़त व खिलाफत अता फरमाई और दुआओं से नवाजा। हुजूर हसनुल उलमा 14-15 नवंबर 1984 को महरेरा मुताहिरा से उर्से कासमी की तकरीब में हुजूर हसनुल उलमा मौलाना मुफ्ती सैयद हसन मियाँ बरकाती शहजादा नसीन खानकाए बरकातिया ने जानसीने मुफ्ती अल्लामा सैयद अलबी जानसीने मुफ्ती आज़म अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह 1407 हिजरी 1988 ईस्वी में हज व ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए तो अल्लामा सैयद अलवी मालकी ने अपनी खिली हुई किताबें अता फरमाई और बहुत ही इज्जत की नज़र से देखा। इमाम अहमद रज़ा कादरी बरेलवी के पोते होने की हैसियत से और मुफ्ती आज़म रदी अल्लाह अन्हु के जानसीने की वजह से आपकी बहुत इज्जत अफजाई फरमाई और दुआ कलमात से नवाजा। अल्लामा फैज अहमद ओवैसी पाकिस्तानी हुजूर ताजो सरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुतादात और अल मुस्तंद का तर्जुमा फरमाया। फ़कीर ने सदात समझकर खिताब मजहूर का मुताला किया और इससे तफगीर ताजो सरिया रहमतुल्लाह अलैह मुताबिक और मुस्तंद का तर्जुमा फरमाया। फ़कीर ने सदात समझ कर किताब मजकूर का मुताला किया। इससे फ़कीर इल्मी तौर पर खूब मुस्तफ़ीद हुआ और फ़कीर यकीन और नहायत
वसूफ से अर्ज करता है कि आवाम के लिए तो अकाइक के मामलात में बिलाशुबा ये तर्जुमा शरीफ रहबरी व हादी है, लेकिन उलमाए किराम के लिए भी बेहतरीन दस्तावेज हैं। शहर बुखारी हजरत मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजाबादी साबिक सदर सुबाए अजामियातुल सरफिया मुबारकपुर जिला आजमगढ़ यूपी, जो तकरीबन 11 साल तक बरेली शरीफ में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की सरपरस्ती में फतवा लिखते रहे और जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम की उम्र में ही नायब मुफ्ती आजम कहा, और लिखा जाता है कि उनकी ज़बानी कई बार उनका ये तसव्वुर सुना कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल में जो मकबूलियत व हर दिल अजीजा हासिल हुई, वो आपके विसाल के बाद अजहरी मियाँ को बड़ी तेज़ी के साथ शुरू सालों में ही हासिल हो गई, और बहुत जल्द लोगों के दिलों में अजहरी मियाँ ने अपनी जगह बना ली है। आपका विसाल व कमाल मुर्शिद करीम हुजूर ताजो सरिया रहमतुल्लाह अलैह बरोज जुमा मुबारक को 6 जकीदा 1439 हिजरी 20 जुलाई सन 2018 के बाद अजान मगरिब 7:30 बजे हुआ। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान में विसाल फरमाए गए। हो सके तो देख अख्तर बागे जन्नत में उसे वो गया तारों से आगे आसियाना छोड़कर। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना अशाह मोहम्मद हामिद रज़ा खान आपकी बिलादत शरीफ माह रबी उव्वल 1293 हिजरी मुताबिक 1885 ईस्वी में हुई। इसमें मुबारक का लक़ब अकीके में आपका नाम हस्बे दस्तून ख़ानदानी मोहम्मद रखा गया, जिनके आज़ाद 1992 है, और यही नाम आपका तारीखी हो गया है। उर्फी नाम हामिद रज़ा है और खिताब का आपका हुज्जतुल इस्लाम है। आपकी तालीम तरबियत आपके वालिद माजिद इमाम अहले सुन्नत मौजूद आज़म सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की आगोश में हुई। वालिद माजिद आप से बहुत मोहब्बत करते थे। जुमला उलूमो फ़नून आपने अपने वालिद माजिद सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी, यहाँ तक कि इल्म हदीस, तफसीर कुरान, इल्म फ़िक़ह, कुतुब माकूलो मनकूल को पढ़कर सिर्फ 19 साल की उम्र शरीफ में फ़ारतुल तहसील हो गए। आपके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत सैयद शाह अबुल हुसैन हमदे नूरी मारबी रहमतुल्लाह अलैह थे। आपके फाजिलो कमालात रईसुल उलमा ताजुल अताकिया आफ्तावे सरी अत तारीख सैकुल मुहद्दिसीन रासुल मुफस्सिरीन इस्लाम आलम उलूम इस्लाम हजरत अल्लामा शाह हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हाज कारी मोहम्मद हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह आपका सिलसिलाए आलिया कादरिया रज़विया 40 में इमाम व शेख तारीख है, और आप इमाम अहले सुन्नत मौजूद आज़म सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे हैं, और आप अपने वालिद माजिद की तमाम खूबियों के जामे थे। आपकी शख्सियत हकानियतें इस्लाम की बोलती तस्वीर थी। काफ़ी गैर मुस्लिम आपके चेहरे मुबारक को देखकर हल्का बगोसे इस्लाम हुए। उसने जाहिरी का ये आलम था कि एक नज़र में देखने वाला पुकार उठता था कि ये हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम की दलील है। और जब आप हरमैन तरबैन मदीना मुनव्वरा जाहिदुल्लाह सरफहू व ताजीमत शरीफ की हाज़िरी पर थे, तो हजरत शेख सैयद हुसैन दब्बाग और सैयद मालवी तुर्की ने आपकी काबिलियत को खिराज तहसीन पेश करते हुए फरमाया कि हमने हिंदुस्तान के अतराफ़ों अफनाफ यानी चारों तरफ हुज्जतुल इस्लाम जैसा फसीह व बलीग नहीं देखा। आप कमालते वातनी के जमे थे। आपने अहिद के लासानी और बेनज़ीर मुदरिस यानी टीचर थे। इल्म हदीस व तफसीर का दरस ख़ास तौर पर मशहूर था, और अरबी अदब में मुनफरिद आला हैसियत के मालिक थे। शेर व अदब का बहुत नाजुक
नाजुक और पाकीज़ा ज़ौक़ दिलचस्पी रखते थे। आप ने मसले अहले सुन्नत व सिलसिलाए आलिया कादरिया रज़विया की बेमिसाल खिदमत अंजाम दी है और सारी उम्र मुसलमानों इस्लाम की फलाह तरक्की में कोशिश करते रहे। आपकी आदत करीमा आपके अपने असलाफ आवाब आज़ाद के मुकम्मल नमूना थे। अखलाक व आदत के ज़माने थे। आप जब भी बात करते तो तबस्सुम फरमाते और लहजा इंतहाई मोहब्बत आमेज होता। बुज़ुर्गों का एहतराम, छोटों पर शफ़क़त का वर्ताओं आपके नौमिया जौहर थे। नजरें हमेशा नीचे रखते, दुरूद शरीफ का अक्सर बिरत फरमाते। यही वजह है कि अक्सर आपको नींद के आलम में भी दुरूद शरीफ पढ़ते देखा गया है। आपकी तबीयत इंतहाई निफ़ात पसंद थी, चुनाचे आपका लिबास आपकी निफासत का बेहतरीन नमूना होता। अंग्रेज और उसकी माशरत के आप अपने वालिद माजिद की तरह शदीद मुखालिफ रहे और उसकी मुखालिफत में नौमिया काम अंजाम दिए। आपकी इंकिसारी हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह उलूम व फ़नून के शहंशाह जोहद तकबा में यगाना और खिताब के सहसवार थे। आप अपने अखलाक व किरदार से अपने असलाक का जो नमूना कौम के सामने छोड़ा है वो एक ऐनी शाहिद की ज़बानी मुलाहिज़ा हो। शेखुल दलाइल मदनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हुज्जतुल इस्लाम नूरानी शक्ल सूरत वाले हैं। मेरी इतनी इज्जत करते कि जब मैं मदीना मुनव्वरा जाहिदुल्लाह सरफ़हू व ताज़ीम से उनके यहाँ गया, कपड़ा लेकर मेरी जूतियाँ तक साफ़ करते। आप अपने हाथ से खाना खिलाते, हर तरह खिदमत करते। कुछ रोज़ के क़याम के बाद जब मैं बरेली शरीफ से वापस मदीना होने लगता तो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा जाहिदुल्लाह सरफ़हू व ताज़ीमा में सरकार आजम में मेरा सलाम अर्ज करना। और आपने ये शेर फरमाया कि अब तो मदीना ले बुला गुंबदे सब्ज दे दिखा। अब तो मदीना ले बुला गुंबदे सब्ज दे दिखा। हमीदो मुस्तफ़ा तेरे हिंद में गुलाम दो, हमीदो मुस्तफ़ा तेरे हिंद में गुलाम दो। आपकी हुस्ने सीरत जिस तरह हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा खूबसूरत था, इसी तरह उनका दिल भी हसीन था। वो हर एक से हसीन थे। सूरत सीरत, इखलाक व किरदार, गुफ्तार बरफ्तार, इल्म फजाल, तकवा जोहदो सब हसीन व खूबसूरत। हुज्जतुल इस्लाम बुलंद पाया किरदार और पाकीजा इखलाक के मालिक थे और खलीक व माहिरबान रहमो करीम। आपने तो अपने बेगाने भी उनके हुस्न सीरत और अखलाक की बुलंदी के सामने वाले थे। अलबत्ता आप दुश्मनाने दिनों सुन्नत और गुस्तखाने दिनों सुन्नत के लिए नग्गी तलवार थे और गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए शाके गुल की तरह लचकदार और नरम थे। सबे बारात आती तो सबसे पहले माफ़ी मांगते, यहाँ तक कि छोटे बच्चे खादिमों और खादिमाओं और मुरीदों से भी फरमाते कि अगर मेरी तरफ से कोई बात हो गई हो तो माफ़ कर दो और किसी का हक रह गया है तो वो बता दो। आप अपने शागिर्दों और मुरीदों से भी बड़े लुफ्तो करम से पेश आते और हर मुरीद शागिर्द यही समझता कि इसी से ज़्यादा मोहब्बत करते। एक बार का वाक़या है कि आप लंबे सफ़र से बरेली वापस आए, अभी घर पर उतरे भी नहीं थे कि और तांगे पर बैठे हुए थे कि बिहारीपुर बरेली के एक शख्स ने, जिसका बड़ा भाई आपका मुरीद था और उस वक्त बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, आपसे अर्ज किया, हुजूर रोज़ की ही आकर देख जाता हूँ, लेकिन चूँकि हुजूर सफ़र पर थे इसीलिए घर पर मालूम करके नाउम्मीदी लौट जाता था। मेरे भाई सरकार के मुरीद हैं और सख्त बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते। उनकी बड़ी तमन्ना है कि किसी सूरत से अपने मुर्शिद का दीदार कर लें। इतना कहना था कि आपने घर के सामने तांगा रोककर इसी पर बैठे आपने छोटे साहबजादों को आवाज़ दी और कहा कि सामान उतर बालो, मैं बीमार की हिदायत करके अभी आता हूँ। और आप फ़ौरन अपने मुरीद की हिदायत के लिए चले गए। बनारस के एक मुरीद आपके बहुत
मुंह चढ़े थे और आप से बहुत मोहब्बत अकीदत भी रखते थे और काफ़ी मोहब्बत भी थी। एक बार उन्होंने दावत की मुरीदों में घिरे रहने की वजह से आप उनके यहाँ वक्त से खाने में ना पहुँच सके। उन साहब ने काफ़ी इंतज़ार किया और जब आप नहीं पहुँचे तो घर में ताला लगाकर और बच्चों को लेकर कहीं चले गए। आप जब उनके मकान पर पहुँचे तो देखा कि ताला बंद है। मुस्कुराते हुए लौट आए। बाद में उन्होंने मुलाकात होने पर उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की और उठने की वजह से भी बताई। आपने बजाय नाराज़ होने या उसे अपनी हतायक समझते हुए उन्होंने उल्टा मनाया और दिलजोई की। आप खुलफाए अल्लामा हजरत और अपने हम सफ़र उलमा से सिर्फ मोहब्बत करते थे बल्कि उनका एहतराम भी करते, जबकि बेशतर आपसे उम्र और तकरीबन सभी इल्म फजल में आपसे छोटे और कम पाए गए थे। सदाते इकराम खुसूसन महरेरा शरीफ के मखदूम जादगान के सामने तो बिछ जाते और आकाओं की तरह उनका एहतराम करते। हुजूर अशरफी मियाँ किचौचा रहमतुल्लाह अलैह से आपको बड़ी उन्हीं मोहब्बत थी और इन दोनों में अच्छे और गहरे मरासिम भी थे। उनको आप ही ने साहिबे गौसे आजम कहा। आप पर हर जलसा और खुसूसन बरेली शरीफ की तकरीबात और उनका बहुत शानदार तारुफ करते थे। मुहद्दिसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से भी अच्छे ताल्लुकात थे। सदरुल्लाह फाजिल मौलाना सैयद नसरुद्दीन मुरादाबादी और हुजूर सदरुस्सुरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली साहब को बहुत मानते और चाहते थे। शेर बेसाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना हसमत अली खान साहब से बड़े तुल्फो इनायत के साथ पेश आते। आपकी शादी में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने शिरकत की। हाफिजे मिल्लत हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब बानी अलजमामी अतुल अशरफ मियाँ मुबारकपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में भी खूबसूरत तवज्जो फरमाते थे। उनकी दावत पर अपने सबसे छोटे साहबजादे हजरत नौमान के साथ 1334 हिजरी में आप मुबारकपुर आजमगढ़ तशरीफ़ ले गए। आपको अपने दामाद व शागिर्द और खलीफा हजरत मौलाना तकदुस अली खान के सभी बड़े मोहब्बत थी। मौलाना तकदुस अली खान सफ़र में आपके साथ रहते। आपका जोदो तकवा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह निहायत की मुतक्की और परहेजगार थे। इल्मी तबलीगी कामों की फुर्सत पाते और जिक्र इलाही और दुरूद शरीफ के बिरद में मसरूफ़ हो जाते। आपके जिस्म अक़दस पर एक फोड़ा हो गया था जिसका ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाना चाहा तो मना फरमा दिया और साफ साफ कह दिया कि मैं नशे वाला टीका नहीं लगवाऊंगा। होश की हालत में 2-3 घंटे ऑपरेशन होता रहा। दुरूद शरीफ का जिक्र करते रहे और किसी भी दर्द बेचैनी का इजहार नहीं होने दिया। डॉक्टर आपकी हिम्मत और इस्तिकामत तकवा का हैरान सौदर रह गया। आपके इल्मी व तबलीगी कारनामे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह एक बुलंद पाया खतीब, माया नाज अदीब और यगनाए रोजगार आलिम व फाजिल थे। दीने मतीन की खिदमत व तबलीग नमूसे मुस्तफ़ा की हिफाजत, कौम की फलाह महबूद उनकी ज़िंदगी के आलम असलम मकासिद थे और यही सच है कि वो गलबाए इस्लाम की खातिर जिद रहे और आखिरी दम तक वो परचमे इस्लाम बुलंद करके इस दुनिया से रुखसत कामरान कामयाब हो कर गए हैं। इस सदी के वालिद मोहतरम सैयदना आला हजरत ने खुद उनकी इल्मी व दीनी खिदमत को सराहा है और आप पर नाज किया है। मसल के आहले सुन्नत व जमात की तरवीज इशाअत की खातिर आपने बसरे सगीर के मुख्तलिफ अलग अलग शहरों में कस्बों के दौरे किए, गुस्तखाने रसूल बहबिया से मुनाजरे किए, सियासतदानों के फरेब से मुसलमानों को निकाला है, सुधी तहरीक को
पसपा करने के लिए सी जोड़कर कोशिश की है और हर जिहत हर समत से बातिल और बातिल परस्तों का रद्द और इंसदाद रोकथाम की है। हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की सियासी बरीसत और हस्क की हिमायत हुज्जतुल इस्लाम अलैह सियासतदानों की चालों को खूब समझते थे और अपने ज़माने के हाल से पूरी तरह बाखबर रहकर मुसलमानों को सियासत व रिसायत के चुंगल से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। साथ ही साथ इस आधी में उड़ाने वाले मुस्लिम उलमा, कायदीन और दानिशवरों से इफामो तयफीम और हक ना कबूल करने पर उनसे हर तरह की नबरंद जंग आजमाई के लिए भी तैयार थे। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महलवी साहब पर उनकी कुछ सियासी हरकतें और तहरीरात की हैं बिना पर सैयदना आला हजरत ने उन पर फतवा सादिर फरमाया। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महलवी साहब ने नजदियों के जरिए हरमैन शरीफैन के खुतबा कुब्बा जात गिराने और बेहुरमती करने के सिलसिले में लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। हजरत हुज्जतुल इस्लाम साहब जमात रजाए मुस्तफ़ा की तरफ से चंद मशहूर उलमा के साथ लखनऊ तशरीफ ले गए। वहाँ मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली साहब और उनके मुताल्लिकीन व मुरीदीन ने जबरदस्त इंकलाब इस्तकबाल किया और जब मौलाना अब्दुल बारी ने हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह से मुसाफा करना चाहा तो आपने हाथ खींच लिया और फरमाया कि जब तक मेरे वालिद गिरामी का फतवा है और जब तक आप तौबा नहीं कर लेंगे मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली साहब का लक़ब सुरातुल ईमान था। उन्होंने हक को हक समझकर खुले दिल से तौबा कर ली और फरमाया लाज रहे ना रहे मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से खौफ से तौबा कर रहा हूँ, मुझको उसी के दरबार में जाना है। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है यही सही लिखा है। इस्लामी कानून की हिमायत में जिरहे और बेबाकी लखनऊ ही मुसलमानों के निकाह व तलाक के मामले में कानून बनाए जाने पर एक कॉन्फ्रेंस के मौके पर हजरत हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह और सदरुल्लाह फाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना तकदुस अली खान रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ से शिरकत के लिए गए थे और इस कॉन्फ्रेंस में सिया और नदबी मौलवियों के अलावा शाह सुलेमान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और हजरत मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महलवी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद और दो भतीजे अब्दुल वली भी थे। हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने जिस रहे में सबको उखाड़ दिया और फैसला आप ही के हक में हुआ। हिमायती इस्लाम और शरीयत मुस्तफ़ा व नुमूसे रिसालत के मामले में हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा हक से काम लिया और किसी भी मुश्किलात को भटकने नहीं दिया। आपकी मुशाना सान 1935 ईस्वी में मुसलमानों के महजबी कौमी सियासी समाजी और मुआवसी इस्तेकाम के सिलसिले में एक जस्टिस तैयार करने की गरज से मुरादाबाद में 4 रोज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई थी, जिससे इजलास की सदात हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी और इस मौके पर जो फसीह व बलीग मुरगमज तुर तबदीर खुतबा दिया था वो उनकी सियासी बरीसत, इल्मी जाहद, क़ियादत व सियादत, मिली व कौमी हम दर्दी और दीनी हिमायत की एक शानदार मिसाल है और जिसने उनके आलिमाना मुस्लिहाना व मुफ्सकिराना शानो अजमत का भरपूर इजहार होता है। ये खुतबा आवाम व खवास उलमा व तलबा हर एक के लिए लायके मुताला है। इस खुतबे से हुज्जतुल इस्लाम की अदबी शान भी झलकती है। आपकी जवाने अदब व महारत हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की जवान दानी, उनकी फसातों बलगत नस्र ग्रामी व शायरी खुसूसन अरबी जबानों अदब पर उबूर और महारत की तारीफ मुल्क अरब के उलमा ने
भी की है। हुज्जतुल इस्लाम के दूसरे हजबा ज़ियारत 1442 हिजरी के मौके पर अरब के मारूफ अरबी जानने वाले हजरत शेख सैयदना दब्बाग और सैयद मालिकी तुर्की ने आपकी अरबी दानी और काबिलियत को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस तरह एतराफ़ किया है, हमने हिंदुस्तान के अकनाफ और अतराफ चारों तरफ हुज्जतुल इस्लाम जैसा फसीहा वली दूसरा नहीं देखा है जिससे अरबी जबान में इतना उमूर हासिल हो। हुजूर आला हजरत ही की हयात में हजरत मौलाना जियाउद्दीन पीलीभीती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार आपने रिसाले पर, जिसे उन्होंने इल्मे गैब के मसले पर लिखा था, कि हुज्जतुल इस्लाम से तकरीज लिखने की फरमाइश की। हजरत ने कलम बर्दाश्ता उनके सामने अरबी जबान में एक बसी तकरीज तहरीर फरमाई। हुजूर आला हजरत की अरबी जबान की किताब अदौलतुल मक्किया और फिपलुल फकीहिल फाहिम छपवाने के वक्त हुजूर आला हजरत के हुक्म पर उसी वक्त अरबी जबान में तमाहीदात तहरीर कर दी, जिन्हें देखकर हुजूर आला हजरत बहुत खुश हुए, खूब सहारा और दुआएं दी। हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की अरबी दानी का एक अहम वाकया ये भी है। हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को एक बार दारुल उलूम मुनैया अजमेर शरीफ में तलबा या स्टूडेंट्स का इम्तिहान लेने और दारुल उलूम के मुआयने के लिए दावत दी गई। तलबा के इम्तिहान बगैर से फारिग होकर जब आप चलने लगे तो मौलाना मोइनुद्दीन साहब अजमेरी ने दारुल उलूम के मुआयने के सिलसिले में कुछ लिखने की फरमाइश की। आपने फरमाया, फकीर 3 जबानें जानता है, अरबी, फारसी और उर्दू, आप जिस जबान में कहें लिख दूं। मौलाना मोइनुद्दीन साहब उस वक्त आला हजरत और हुज्जतुल इस्लाम से इतने मुअत्सिर नहीं थे जितना होना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि अरबी में तहरीर कर दीजिए। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने कलम बर्दाश्त कई सफ़े का निहायत ही फसीहों वलीग अरबी में मुआयना तहरीर फरमा दिया। हुज्जतुल इस्लाम के इस कलम बर्दाश्त लिखने पर मौलाना मोइनुद्दीन साहब मौसूफ हैरत ज़्यादा भी हो रहे थे और सोच भी रहे थे कि जाने क्या लिख रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपनी अरबी दानी पर बड़ा नाज था। जब मुआयना लिखकर हुज्जतुल इस्लाम चले आए तो बाद में उसके तर्जुमे के लिए मौलाना मरहूम बैठे थे। उन्होंने हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की अरबी समझने में बड़ी दिक्कत पेश आई। बमुश्किल तमाम तुलगत देख कर तर्जुमा किया और वो भी तर्जुमा पूरा नहीं कर सके और बाज अल्फाज उन्हें लुगत में भी नहीं मिले। बाद में उन्हें अरब उलमा की जबान और उनकी कुतुब से हासिल हुए, तब जाकर उन्हें इन अल्फाज और मुहावरों का इल्म हुआ। ग्वालियर के राजा की अकीदत आपके हुस्नो जमाल का ये आलम था कि सिर्फ सूरत देखकर लोग आशिक व सैदा बन जाते थे। चुनाचे आप एक बार ग्वालियर शरीफ तशरीफ ले गए। आपका जब तक वहाँ कयाम रहा, हर रोज वहाँ का राजा सिर्फ आपकी जियारत के लिए हाजिर होता और आपके हुस्नो जमाल को देखकर हैरान होता। इसी तरह चित्तौड़गढ़ उदयपुर के राजगान आपके बड़े सैदाई रहे। यूं ही एक बार आप सफर से तशरीफ लाए, स्टेशन पर आप जिस वक्त उतरे तो उसी वक्त उताउल्लाह बुखारी भी उतरा। उसने लोगों से पूछा, ये कौन बुजुर्ग हैं? लोगों ने बताया, ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के जानसीन हजरत मौलाना हामिद रजा खान हैं। ये सुनकर कहने लगे कि मैंने तो मौलवी तो बहुत देखे हैं, मगर इनसे ज्यादा हसीन खूबसूरत किसी मौलवी को नहीं पाया। आपकी हज्जो जियारत शरीफैन मदीना मुनव्वरा जाहिदुल्लाह सरफहू पर ताजीम से भी मुशर्रफ हुए। चुनाचे 1323 हिजरी मुताबिक 1905 ईस्वी में अपने वालिद मोहतरम इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज को तशरीफ ले गए। ये हज आपका इल्मी व तहकीक मैदान में अजीम था और जो काराए नौमिया
आपने इस हज में अदा फरमाया वो अदौलतुल मक्किया की तरतीब है, जिससे फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 8 घंटे की कम मुद्दत में कलम बर्दाश्त लिख दी। मजकूरा किताब के हज्जा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को देते जाते आप उनको साफ करते जाते, फिर इसका तर्जुमा भी आप ही ने किया। ये तर्जुमा बहुत ही अहम जो देखने से ताल्लुक रखता है। ज़ियारत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्तियाक किस दर्जा पर आपको था, इसका सही अंदाजा आपके मंदरजा जेल शेर से होता है। इस तमन्ना में दम तोड़ा है, इस तमन्ना में दम तोड़ा है, यही सारा है जिंदगी का, बुला लो मुझको मदीने सरबर, नहीं तो जीना हराम होगा। इसी तमन्ना में दम तोड़ा है, इसी तमन्ना में दम पड़ा है, यही सारा है जिंदगी का, बुला लो मुझको मदीने सरबर, नहीं तो जीना हराम होगा। और दूसरा हज आपने 1434 हिजरी में अदा फरमाया। हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान में तशरीफ लाना। कायमे पाकिस्तान से पहले 1925 ईस्वी में अंजुमन हुज्जुल अहनाफ के सालाना जलसे में शिरकत की गरज से लाहौर तशरीफ ले गए। चुनाचे इसी दौरान सरगिराहे दया बिना को मुनाजरे को चैलेंज दिया गया और मुनाजरे की गरज से आपके साथ अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ ले गए, लेकिन ऐन वक्त पर फकीरे मुखालिफ ने उजरे लंग पेश करके जलसा गाहे में आने से इनकार कर दिया। जैसे कि सैयद अयूब अली साहब अपनी एक अनकमत में इसी मुनाजरे की तशरीफ इशारे करते हुए फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में धूम है किस बात की मामूल है, लाहौर में दूल्हे बना हामिद रजा। समझते थे क्या और क्या हुआ अरमान, दिल में रह गया तेरी ही सर सेहरा बना हामिद रजा। अयूब किस्मा मुख्तसर आया ना कोई वक्त पर तेरे मुकाबिल, मन चला हामिद रजा। एक बार फिर से इस शायरे को सुन लीजिए। हिंदुस्तान में धूम है किस बात की मालूम है, लाहौर में दूल्हा बना हामिद रजा। समझते थे क्या और क्या हुआ अरमान, दिल में रह गया तेरे ही सर सेहरा रहा बना हामिद रजा। अयूब किस्सा मुख्तार आया ना कोई वक्त पर तेरे मुकाबिल, मन चला हामिद रजा। इसी मुनासिरे के मौके पर हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात डॉक्टर इकबाल से भी हुई और अल्लामा इकबाल को भी जब हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंदी मौलवी और गुस्ताखाना इबारतें सुनाई तो वो सुनकर हैरत जदा रह गए और बेसख्ता बोले कि मौलाना ये सही इबादत गुस्ताखाना है कि इन लोगों पर आसमाना क्यों नहीं टूट पड़ा, इन पर तो आसमाना टूट जाना चाहिए। इस जलसे से सबसे बड़ा फायदा ये दुनियाए सुन्नियत को हुआ कि वो हजरत मुहज्जिद आजम पाकिस्तान अल्लामा मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी बजरूगत हस्ती का हुसूल हुआ। वाक़या इस तरह मनफूल है कि हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह अंजुमुल हिजबुल अहनाफ के जलसे में लाहौर तशरीफ ले गए। वहाँ चंद रोज आपका कयाम रहा। जलसा गाहे में दूसरे लोगों की तरह मौलाना सरदार अहमद साहब भी आए और हजरत हुज्जतुल इस्लाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और मौलाना सरदार अहमद साहब उस वक्त अंग्रेजी तालीम हासिल कर रहे थे। हजरत की ज़ियारत ने आपके लक़ब पर जो असरात छोड़े उन्हें आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। उस रोज बराबर हजरत की कयाम गाह पर पहुंचते रहे, दूसरे लोग आते रहे और अपनी हाजतें बयान करते रहे, लेकिन मौलाना सरदार अहमद रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह सूरे से आखिर तक खामोश रहे, अदब के साथ बैठे रहे और जब हजरत के आराम का वक्त होता तो लोगों के साथ चले जाते। इसी तरह कई दिन गुजर गए और हजरत की वतन वापसी में 1 या 2 दिन बाकी रह गए। चुनाचे एक रोज खुद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे पूछा कि साहबजादे क्या वजह है कि आप रोज आते हैं लेकिन खामोश बैठकर चले जाते हैं। मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इल्मे दीन हासिल करने की गरज से आपके साथ चले जाने का जाहिर फरमाया। हजरत ने खुशी के साथ कबूल कर लिया और अपने साथ बरेली शरीफ लाए। चुनाचे हजरत की
करामत सोहबत से अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस और कामयाब मुदरिस बने और तकसीम पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे के बाद लाहौर में सुन्नी मुसलमानों की क़ियादत आपके हिस्से में आई और पाकिस्तान का शहर आप ही के नाम सरदाराबाद कहा जाता है। आपकी मिल्ली खिदमत आपने बरने सगीर के मुसलमानों की मुआसरती हालत को बेहतर बनाने के लिए 1925 ईस्वी में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिदा है मुरादाबाद में चंद तफज़ी का जिक्र अपने खुतबाए सदारत में किया। और मगर गौर से देखा जाए तो एक ऐसा दस्तूर अलम है कि अगर कोई इस के मुताबिक काम हुआ होता तो आज मुसलमानों की हालात कुछ और ही होती और मुआसी तिजारतदारी हर दीनी व दुनियावी उमूर में मुसलमान किसी भी कौम से पीछे नहीं होता। इस खुतबाए सदारत में मुलाजिमत की हौसला सिकनी करके सनीयती और तालीमी व तिजारत पर जोर दिया है। मुलाजिमत का हाल यूँ बयान फरमाते हैं, हमरा जरिए मुआश सिर्फ नौकरी और गुलामी और इसकी भी ये हालत कि हिंदू नवाब मुसलमान को मुलाजिम रखने से फरेज करते हैं। रही गवर्नमेंट मुलाजिमत इसका हुलूस लंबा अमल है। अगर रात दिन की मेहनत की नौबत आती है बरसों बाद जगह मिलने की उम्मीद पर रोजाना दिगमत मुफ्त अंजाम दिया करो। अगर बहुत बुलंद हिम्मत हो और कर्ज पर भरोसे औकात करके बरसों के बाद कोई मुआलिजमत हासिल भी की तो इस वक्त तक अर्ज का इतना अंबार हो जाता है जिसको मुलाजिमत की आमदनी से अदा नहीं कर सकते हैं। फिर हिंदुओं के अक्सरियत की 22 आंखों में खटकते रहते हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी रोजी नौकरी में मुनशिर है, हमें दस्तकारी पैसे सीखना चाहिए। अब इसकी ताम काबिलियतें हैं, सनादे बेकार हैं, जिंदगी बवाल है। औलाद की तरबियत इसी नादरी में यूं कर हो सके खुद तबाह नस्ल बर्बाद। लेकिन पेशावर होता हाथ में कोई हुनर रखता तो इस तरह मोहताज ना होता। नौकरी कई वला से इसका जरिए मुआस इसके साथ होता। हमें नौकरी का ख्याल ही छोड़ देना चाहिए। नौकरी किसी कौम को मेराज तरक्की तक नहीं पहुंचा सकती है। दस्तकारी और पैसे और हुनर से ताल्लुक पैदा करना चाहिए। बेशक आपने सुधी तरह का खत्म किया। आपने मुसलमानों की हिफाजत व तबलीग की वो खिदमत का अंजाम दिया है जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान में भी सुधी तहरीक ने बड़ा फितना बर्पा किया है और मुसलमानों को इस के मजहब से फेरने की बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई थीं, जिसकी तरह इशारा करते हुए आपने इरशाद फरमाया कि अब तक तो शुद्धि ही की कोशिशें राजपुताना में थीं, लेकिन अब उन्होंने अपना मैदान अमल बसी कर दिया है और तमाम हिंदुस्तान में जहां मौका मिलता हाथ मारते हैं। कौमें उनके जुल्मों सितम से तबाह हो रही हैं। मुसलमानों की मजहबी अंजुमने हर जगह नहीं है, जो है उन में राब्ता नहीं है। जिस सरजमीन को खाली देखा वहां आर्या दौड़ पड़े और जब तक उलमाए इस्लाम को किसी हिस्साए मुल्क से बुलाए तब तक कितने गरीब शिकार हो चुकते हैं। राजपुताना में हमें तर्जुमा हो चुका है कि आर्यों और जोर छापना और दबाओं बगरह की तमाम कुब्बते इस्लामी फौजा की दावते हक के मुकामिल बेकार हो जाती। जाहिले नादरों के सामने हजारों रुपया पेश किया जाता था और उन्हें मुर्तद हो जाने पर बहुत वलवा अंग्रेज मुअज्जिदे सुनाए जाते और वहाँ हमारे पास इस्लामी जाहिद और बुजुर्गों के जिक्र के सिवा कोई नुस्खा ऐसा बेखिताब असर करता कि देहाती नौजवान अपनी सर मस्ती से होश में आकर दिल
लुभाने वाली सूरत और मालो मनाल के लालच दोनों को नफरत के साथ बैठाकर मार कर इताते इलाही के लिए कमर बस्ता हो जाता। दो फरीकों के साथ इम्तियाज के नुकसान और उस के नतीजे पर तफसीरा करते हुए इरशाद फरमाया कि हमारे सुन्नी हजरात के दिल में जब कभी इंतिकाफ की उमंग पैदा होती है तो उन्हें अपने से पहले मुखालिफ याद आए जो रात दिन इस्लाम को खत्म करने के लिए बेचैन हैं और सुन्नियों की जमात पर इस तरह के हमले करके अपनी तादाद बढ़ाने के लिए बेचैन और मजबूर हैं। हमारे भाई इनकी इस रबिश ने इत्तिदास इफ्तिकाक की तहरीक को भी कायम ना होने दिया, क्योंकि अगर वो फिरके अपने दिलों में इतनी गुंजाइश रखते कि सुन्नियों से मिलकर सीखे तो अलहदा 1.5 ईंट की तालीम करके नया फिरका ही क्यों बनाते और मुसलमानों के मुखालिफ एक जमात क्यों बनाते, तो वो हकीकतन मिल ही नहीं सकते और सूरतन मिल भी जाएं तो मिलना किसी मतलब से होता है जिस के उसूल के लिए हरदम जनी जारी रहती है और उस का अंजाम जिंदाल व फसाद ही निकलता है। ये तो ताज़ा तर्जुबा है कि खिलाफत कमेटी के साथ एक जमात जमीतुल उलमा के नाम पर शामिल हुई है, जिसमें तकरीबन सबके सब ज्यादा बहाबी और गैर मुअक्तिद हैं। नादिर ही कोई दूसरा शख्स हो तो इस जमात ने खिलाफत की तादाद को तो उन्वान बनाया, आवाम के सामने नुमाइश के लिए तो ये मकसद पेश किया, मगर काम अहले सुन्नत के रूह और उनकी बेचैनी का अंजाम दिया। आपने मजहब की तरजीह इसी पर्दे में खूब कि मेरे पास जनाब मौलवी अहमद मुख्तार साहब सदर जमीयतुल उलमा शोबा मुंबई का एक खत आया जो उन्होंने मद्रास का दौरा करते हुए तहरीर फरमाया है। इसमें लिखते हैं कि बहाबी इस सूबे में इस कौमी रुपये से जो तुर्कों के दर्दनाक हालात बयान करके वसूल किया गया था, अब तक 2 लाख तकबीतुल इनाम छपा कर मुफ्त तकसीम कर चुके हैं। अब बताइए कि इन जमातों का मिलना जरदारन दर्दे खरीदन हुआ या नहीं। आपने ही रुपए से अपने ही मजहब का नुकसान हुआ। औरतों की तालीम पर आपका जोर, औरतों की तालीम पर आपने खुतबाए सदारत में काफी जोर दिया है, बल्कि लड़कियों की तालीम और उसकी फलाह तरक्की के लिए भी आपने बेहद कोशिश में रहे और सनफ नाजुक की बका का इस्तेकाम नीज इसके तालीम के फायदे पर आप बड़ी गहरी नजर रखते थे। चुनाचे आपके कितने दौरे मुल्क गिर दौरे इसी मकसद के तहत हुए। आपके ठोस तासुरात और तजवीही जो कॉन्फ्रेंसों में से पास हो तो जिनको बढ़ चढ़ कर अंदाजा होता कि कुदरत ने आपके दिल में कौम मुस्लिम की वका तरक्की का कितना दर्द बदियत फरमाया है। जेल में कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद की ताजबीही इसकी रोशन दलील है। फरमाते हैं कि लड़कियों को तालीम व इंतजाम भी निहायत जरूरी है और इसमें दीनियत के अलावा सूजनकारी यानी सिलाई का काम और मामूली खानदानी घरेलू की तालीम बेहद इम्काने लाजमी है। पर्दे का खास इंतजाम करना चाहिए। अल मुख्तार ये खुतबाए सदारत मुरादाबाद की जहानत और कायदाना सलाहियत की भरपूर रोशन दलील है इस जिस पर मुतालहा हर चीज इल्म और कौमी बाइल्मी काम करने वाले के लिए जरूरी है, जिसमें समंदर को कूंजे भर दिया जाए। आपकी जोके शायरी आप अरबी फारसी उर्दू नज्म व नस्र में मुनफरिद उसलूब बयान रखते थे। हमदो नात दीगर असनाफ शायरी के पेशतर अफसार आपके दीवाने में महफूज है। जेल में चंद कलाम से कुछ असार पेश किए जाते हैं जिससे आप का अदबी जोक काबिलियत व इसके रसूल बखुसूसी अंदाज हो सकता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा नूरे खुदा नामे खुदा
तुम हो, शाह खैरुल वरासाने खुदा सल्ले अला तुम हो, शकीबे दिल करारे जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, तबीबे दर्दे दिल तुम हो, मेरे दिल की दवा तुम हो, गरीबे दर्द मंदों की दवा तुम हो, दुआ तुम हो, फकीरों ने नवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो, हबीबे किब्रिया तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, ना कोई माहे बिस्म तुमसा, ना कोई माहे जब भी तुमसा, हसीनों में तुम हो ऐसे ऐसे के महबूबे खुदा तुम हो, मैं सदके अंबिया के यूं तो सब महबूब हैं, लेकिन जो सब प्यारों से प्यारा है वो महबूबे खुदा तुम हो, तुम्हारे हुस्ने रंगी इश्क रंगी की झलक है, सब हसीनों में वो कुर्सीद सायरों सितारों की जियारत तुम हो, जमी में चमक किसकी फलक पर ये झलक किसकी, बहारों की बहारों में बहारे जहां फिजा तुम हो, वो ला सानी हो तुम आका नहीं सानी कोई जिसका, अगर वो दूसरा कोई हो तो आप ना दूसरा तुम हो, ना हो सकते हैं दो अब्बाल, ना हो सकते हैं दो आखिर, तुम अब्बाल और आखिर और इब्ताद तुम इंतहा हो, तुम खुदा कहते नहीं बनती जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पर इश्क इसको छोड़ा है वही जाने क्या तुम हो, अना मिन हमीदो हामिद रजा, मिन्ही के जल्बों से भी हामिद इल्लाही रजा हामिद, और हामिद रजा तुम हो, मुआखिज बमराजे तज़किराए मसाइके कादरिया बरकातिया रजविया, तज़किराए उलमाए अहले सुन्नत फ़कीहे इस्लाम का सफ़ा नंबर 237, फाजले बरेलवी उलमाए हिजाज की नज़र में सफ़ा नंबर 82, माह नामा आला हजरत जून 1963, सफ़ा नंबर 18, दावते फिक्र सफ़ा नंबर 35, खुतबा हुज्जतुल इस्लाम का सफ़ा नंबर 51-52, माह नामा आला हजरत अप्रैल 1986 ईस्वी, सफ़ा नंबर 25, माह नामा हिजाज जदीद दिल्ली अप्रैल 1989 ईस्वी, सफ़ा नंबर 52,